Hello student, I Neha Miklani. Today I am here to give you the presentation or a view on the topic of sampling techniques part 4. This is my fourth video in this topic regard. In my previous 3 videos I have discussed the various sampling methods, probability sampling techniques and non-probability sampling techniques. And in this video we are going to discuss the probability sampling technique and also some other techniques of the sampling also. So let's start our video. Hello student, I am Neha Miklani. Welcome to Divakar Education Hub. Today I am here to give you the presentation on the topic of sampling techniques part 3. This is my third video in this topic regard. In my previous video I have discussed about the detailed meaning of the sampling technique, and in our next video I have discussed the one type of the sampling technique, and in this video I am going to discuss the another types of the that is the probability sampling techniques. So let's start our video. Starting my video, I just want to say that just download the Divakar Education Hub app from the Google Play Store. In this app you can easily get the UGC NET paper 1 free online classes, and you can also get the 150 plus mock test from the different subjects which you are going to apply in the UGC NET, and then you can also read free study notes from the paper 1 and 2, and you can also get some announcements are being done under the Divakar Education Hub, and the live classes which are going to be conducted in the previous days also you can get it, and you can also chat with another students in this app also. So please, I just recommend you that you have to upload or install Divakar Education Hub app from Google Play Store. So there are various types of sampling methods are there. Probability methods are there, non-probability methods are there, and mixed methods are there. In probability method, we have already discussed the 4 types of methods are there. Non-probability methods में, like we have discussed the judgment sampling method, quota sampling method, convenience sampling method, and snowball sampling method. So we have already discussed all these types of methods in our previous videos, and in today's video we are going to discuss the probability methods. In probability methods there are 4 types of methods are there: simple random sampling, stratified random sampling, systematic sampling, and cluster sampling. And in mixed sampling methods there are 3 types of methods are there: multi-stage method is there, multi-phase method is there, lot quality assurance method is there. So in our this video we are going to discuss the probability methods, in which we are going to discuss simple random sampling, stratified sampling, and systematic sampling. Before starting my video about the probability and non-probability, firstly again मैं आपको फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ कि नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी मेथड्स क्या होते हैं. नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स कौन से होते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड एक ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि हम अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट या अपने बेसिस पे लेते हैं, जिसमें कोई भी ऐसी कैलकुलेशंस नहीं करते हैं कि जिसमें हम सैम्पल को ले सकें. मतलब हम अपने अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ हमें जो कुछ ठीक लगता है उस हिसाब से जब हम सैम्पल्स को लेते हैं, विदाउट एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, विदाउट एनी बीइंग स्टेप्स आर बीइंग फॉलोड, कुछ भी पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो किए बिना, कुछ भी सिस्टमेटिक वे से किए बिना हम लोग अपने सैम्पल्स को ले लेते हैं, तो वो हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग कहलाते हैं. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में क्या होता है कि आप इक्वल चांस फॉर एवरीवन, इट मीन्स दैट एवरीवन हैज़ द इक्वल चांस, मतलब सबको चांस मिलने का अधिकार है.
हर कोई स्टडी का पार्ट बन सकता है, बट वो कैसे बन सकता है? विद द हेल्प ऑफ सम सिस्टमेटिक वे या विद द हेल्प ऑफ सम कैलकुलेशन वेज। जब हम कुछ एक सिस्टमेटिक वे से या कुछ कैलकुलेशन टर्म से जब हम सैंपल को लेते हैं सेंसस में से, पॉपुलेशन में से, तब वो हमारा प्रोबेबिलिटी मेथड कहलाता है। तो इसमें हमारे पास 4 तरीके के मेथड्स हैं: सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम, सिस्टमेटिक एंड क्लस्टर। बट in this video we are going to discuss only 3 methods: simple random, stratified samples and systematic sample. So let's start. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सबसे पहले इसको हम डिस्कस करेंगे। ईच यूनिट हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी यही होता है कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सिलेक्ट होने की। मतलब एवरीवन हैज़ ए चांस टू बी सिलेक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द स्टडी। हर किसी को उतना चांस मिलना चाहिए इस स्टडी का पार्ट बनने के लिए। चांस डिटरमाइन विच आइटम शैल बी इंक्लूडेड। और चांसेस ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी आइटम्स को हमने इंक्लूड करना है और कौन सी आइटम को हमने इंक्लूड नहीं करना है, या फिर कौन से ऐसे रिस्पोंडेंट्स हैं जिनको हम इंक्लूड करेंगे और कौन से ऐसे रिस्पोंडेंट हैं जिनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। सो ईच यूनिट हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है इस स्टडी का पार्ट बनने के लिए। सो हाउ दिस पॉसिबल? द सैम्पल इज ए सिंपल रैंडम सैम्पल इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। हमारा जो सैंपल है वो सिंपल रैंडम सैंपल तभी कहलाता है अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू होती है। तो पहली कंडीशन क्या है? ऑल आइटम्स सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। सभी आइटम जितने भी रिस्पोंडेंट हैं इंडिपेंडेंटली हमने सिलेक्ट करने हैं, क्लस्टर में नहीं सिलेक्ट करने हैं, या सभी को इकट्ठा ही सिलेक्ट नहीं करना है कि जो भी हमें बेस ठीक लगा उसके हिसाब से करें। एक एक रिस्पोंडेंट को हम जब सिलेक्ट करते हैं तो हम इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट करेंगे इसमें। एट ईच सिलेक्शन ऑल रिमेनिंग आइटम्स हैव द सेम चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। और हर एक सिलेक्शन प्रोसेस में हर एक आइटम्स को इक्वल चांस मिलना चाहिए सिलेक्ट होने का। ऑल द पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ ए गिवन साइज आर इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। और जितने भी पॉसिबल सैम्पल्स होते हैं, जितने भी गिवन साइजेस अवेलेबल होते हैं, सबको इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। वो किस तरीके होता है? लेट्स सी। सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल भी बोलते हैं इसको और अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये लॉटरी हमारे पास मेथड आ जाता है। इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास पहली टेक्निक आ जाती है लॉटरी मेथड्स। अब लॉटरी मेथड्स में क्या होता है? देखो, एक जार है, उसमें बहुत सारे टिकट हमने सबके नाम जो है डाले हुए हैं, ठीक है। सो हमने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन सीक्वेंसेस हमने ली हुई है, 3 पीस ऑफ ड्रॉ हमने लेने हैं, ठीक है। और इनमें से सबको मतलब करके और वहाँ से 3 पीसेस हमने ड्रॉ के निकाल देने हैं, तो वो हमारा लॉटरी सैंपल हो जाता है। अब या फिर हम रैंडम नंबर टेबल क्रिएट कर लें। रैंडम नंबर टेबल में क्या होता है कि आप लोग जैसे पहले कॉलम में से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट कर लो, दूसरे कॉलम में से दूसरे पर्सन को सिलेक्ट कर लो, तीसरे कॉलम में तीसरे पर्सन को सिलेक्ट कर लो और चौथे कॉलम में चौथे पर्सन को सिलेक्ट कर लो। मतलब हर एक कॉलम को एक चांस मिला है सिलेक्ट होने का। सो दैट इज़ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। अब इसमें लॉटरी मेथड पहला हमने डिस्कस किया है। लॉटरी मेथड में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ड्रॉ हमने निकालना है एन नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट से, तो विद रिप्लेसमेंट। तो प्रोबेबिलिटी लॉटरी मेथड में हम लोग 2 तरीके के चांसेस ले सकते हैं, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या होती है प्रोबेबिलिटी, एक बार एक को सिलेक्ट किया एन नंबर में से, फिर उसको अंदर डाल के फिर दूसरी बार दूसरे को सिलेक्ट किया, ठीक है। सो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आप दूसरे को रिप्लेस नहीं करते हो। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉ, जब आप फर्स्ट ड्रॉ निकालते हो तब आप एन नंबर्स ऑफ आपने सिलेक्शंस ले ली,
जब आप दूसरा ड्रॉ सेलेक्ट करते हो, ठीक है, सेकेंड ड्रॉ निकालते हो, जो आपने पहली बार निकाला हुआ है उसको आप साइड पे कर दोगे। अब जितने बचे हुए हैं वहाँ से आप ड्रॉ निकालोगे। फिर तीसरा जब ड्रॉ आएगा, जो आपने 2 रिस्पोंडेंट पहले निकाल चुके हैं उन दोनों को साइड पे कर दिया, फिर तीसरा ड्रॉ निकाल दिया। विद रिप्लेसमेंट में क्या है, जब आपने एक बार निकाल दिया है रिस्पोंडेंट, आपने ड्रॉ निकाल दिया है, तो आपने वो निकालने के बाद फिर से उसको अंदर जार के अंदर डाल दिया, फिर दोबारा से सिलेक्शन कर ली। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि यू विल नॉट टेक एनी रिप्लेसमेंट, आप उस पर्सन की रिप्लेसमेंट नहीं करते हो, ठीक है। वो क्यों नहीं होता है कि आप लोग क्या करते हो कि आप जो है उस पर्सन को आप निकाल देते हो, फिर आप दोबारा से ड्रॉ निकालते हो, फिर दूसरे पर्सन को भी निकाल देते हो, फिर आप दोबारा से ड्रॉ निकालते हो, फिर आप तीसरे पर्सन को भी आप निकाल देते हो, ठीक है। सो ये होते हैं विद रिप्लेसमेंट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हो टेबल रैंडम सैम्पलिंग में। मैंने आपको बताया ही है, यू विल सिलेक्ट 1 person फ्रॉम ईच कॉलम या 2 person फ्रॉम ईच कॉलम। इट मीन दैट एवरी कॉलम हैज़ इक्वल चांस फॉर बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें पहले मैंने इसमें इसको सिलेक्ट कर लिया, टीवी लगा लेते हैं, कुछ समय से होगा। हाँ, टीवी लगा लेते हैं, कुछ समय से होगा। हाँ इतना कर लो, छोटे छोटे कपड़े बैठ के तय कर दे। हाँ मैंने कैरम बोर्ड खेल लिया। कम्मा तो टल्दी क्यों हुआ तू। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आर देयर। सो मेरिट्स इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सनल बायसेस नहीं होता है, कि सभी को चांस मिलने का राइट होता है, कि सभी एज ए चांस इनको सबको ही है सिलेक्ट होने का। नेक्स्ट, सैम्पल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, जो जितनी भी पॉपुलेशन में से जो भी हम सैंपल ले रहे होते हैं वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड, और मोर एक्यूरेट डाटा हमें मिलने के चांसेस होते हैं। डीमेरिट्स, कम्प्लीटली कैटलॉग यूनिवर्स, तो कम्प्लीटली कैटलॉग यूनिवर्स हमें मिलता है। केसेस टू वाइडली डिस्पर्स्ड होते हैं, टाइम एंड कॉस्ट हमें लगता है। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर देयर। Now come to the next types of the probability sampling, that is the stratified random sampling. Stratified random sampling में क्या होता है, यूनिवर्स इज सबडिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप। जितनी भी आपकी पॉपुलेशन होती है, जितना भी आपका यूनिवर्स होता है, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। इसमें ए सिंपल रैंडम सैम्पल इज दैन चूजेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच ग्रुप, और उसमें से फिर हम सिंपल रैंडम सैम्पल करते हैं। जैसे कि हमने टेबल में क्या किया है, नंबर्स को अलग अलग ग्रुप्स में हमने कन्वर्ट कर दिया, और उस ग्रुप में से एक एक रिस्पोंडेंट को हमने सिलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले आपका मेन काम क्या होता है स्ट्रेटिफाइड में, आप एक जो आपकी जितने भी यूनिवर्स होते हैं, जितना भी पॉपुलेशन साइज़ होता है, उसको आप छोटे छोटे ग्रुप्स में आप डिवाइड कर देते हो, और हर एक ग्रुप से आप सिंपल रैंडम सैम्पल को मेथड को यूज़ करके वहाँ से रिस्पोंडेंट सिलेक्ट कर लेते हो। सो इश्यूज़ कौन कौन से इसमें होते हैं, इसमें बेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि आप कौन सा बेस लेते हो स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। आप जो स्ट्रेटिफाइड डाटा बना रहे हो या सर्टिफाइड ग्रुप्स आप बना रहे हो, तो आप कौन सा जो मेथड या बेस लेके चल रहे हो उस ग्रुप को बनाने के लिए, तो ये एक बिग इशू बन जाता है। बाकी नंबर ऑफ़ स्टार्टा, कितने स्टार्टा आप यूज़ कर रहे हो। अगर नंबर ऑफ़ स्टार्टा बहुत ज़्यादा है तो हर एक स्टार्टम को सिलेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्टार्टा मतलब नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने से है। सैम्पल साइज़ विद इन द स्टार्टा, और हर एक स्टार्टा में कितना सैंपल हमने लेना है, तो ये भी एक इशू क्रिएट होता है। तो सैंपल साइज़ विद स्टार्टा में हम क्या करते हैं, 2 मेथड लेके चलते हैं, प्रोपोर्शनल और डिसप्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि ईच स्टार्टा में सेम प्रोपोर्शन हम लेके चलते हैं। डिसप्रोपोर्शन में क्या होता है, हर एक स्टार्टा जो भी होता है उसमें जितने भी हम लोग रिस्पोंडेंट लेते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। अब देखते हैं कैसे करते हैं हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। एग्जांपल मैंने जैसे ली हुई है, एक रोहतक सिटी है, वहाँ से मैंने सैंपल लेना है। उसमें मैंने वहाँ पर रिजर्वेशन जो कैटेगरी बेसिस पे वहाँ पे स्टार्टर्स बना लिए हैं, अलग अलग स्टार्टर्स बना लिए हैं।
स्टार्टा मैंने कैसे बनाया है कि एक जनरल कैटेगरी का स्टार्टा बना दिया है, एससी कैटेगरी का स्टार्टा बना दिया, एसटी कैटेगरी का स्टार्टा बना दिया, ओबीसी कैटेगरी का स्टार्टा बना दिया। जनरल कैटेगरी मतलब ये मेरे 4 स्टार्टास बने हैं यहाँ पे। तो मैंने स्टार्टर डिस्प्रोपोर्शनेट लिया है। डिस्प्रोपोर्शनल में क्या है कि सभी में इक्वल पर्सन नहीं है। जैसे जनरल कैटेगरी में 30% लोग हैं तो वहाँ से मैंने 300 सैंपल ले लिया है। एससी कैटेगरी में 15% लोग हैं तो वहाँ से मैंने 150 पर्सनस ले लिए। एसटी कैटेगरी में 25% लोग आते हैं तो मैंने वहाँ से 250 रिस्पॉन्डेंट ले लिया। और ओबीसी कैटेगरी में 30% तो वहाँ से मैंने 300 स्टार्टर्स ले लिए। तो मतलब क्या है, मैंने डिस्प्रोपोर्शनेट साइज में लिया है सैंपल और मेरा टोटल सैंपल साइज हो गया है 10,000। सो इसके भी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स क्या होते हैं इसमें? मेरिट्स क्या होते हैं? मोर रिप्रेजेंटेटिव डाटा जितना भी होता है वो आपका सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव डाटा होता है। ग्रेटर एक्यूरेसी होता है, डाटा आपको एक्यूरेट मिलने के चांसेस होते हैं। ग्रेटर जोग्राफिकल कंसंट्रेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल कंसंट्रेशन मिलने के चांसेस होते हैं। डी मेरिट्स क्या होते हैं? जो भी एटमोस्ट केयर की ज़रूरत होती है जब आप एक स्टार्टअप बनाते हो। स्किल्ड सैम्पलिंग टेक्निक की बड़ी ज़रूरत होती है। कॉस्ट पर ऑब्जर्वेशन में भी हाई, और जितनी भी आप कॉस्ट लेते हो ऑब्जर्वेशन की वो भी जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सैम्पलिंग, दैट इज़ द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेक्टिंग फर्स्ट यूनिट एट ए रैंडम। सबसे पहले आपने वहाँ से एक यूनिट वहाँ से रैंडम बेसिस पे एक रिस्पॉन्डेंट आपने ले लिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, सिलेक्शन एडिशनल यूनिट एट इवनली स्पेस्ड इंटरवल्स। आप लोग क्या करते हो, अब दूसरा यूनिट सिलेक्ट करते हो इवनली स्पेस पे, देन कंप्लीट करते हो फिर अपने सैम्पल्स को। जैसे मैंने अभी इसमें देखो, पहली सिलेक्शन मैंने कैसे की है, वहाँ से टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट में से एक यूनिवर्स में, जैसे k इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n। k क्या है, सैम्पल इंटरवल है, n क्या है हमारा यूनिवर्स साइज़ है, और n क्या है हमारा सैम्पल साइज़ है। अब इसमें एग्जांपल लेके चलो, क्लास ऑफ 95 स्टूडेंट्स, मेरे पास 95 स्टूडेंट्स की क्लास है और रोल नंबर उनके स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 to 95, और मैंने वहाँ से 10 स्टूडेंट एज ए सैम्पल के तौर पे सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं के निकालूंगी, ठीक है। के क्या है मेरी के में क्या होता है, सबसे पहले मैं यूनिवर्स साइज लूँगी, 95 के हुआ, और उसमें से मेरा सैम्पल साइज होगा डिवाइडेड बाय 10, तो वो कितना बन गया 9.5, या फिर उसको मैं 10 लिख सकती हूँ क्योंकि हाफ परसेंट तो सिलेक्ट नहीं करते। सो अप्रॉक्सीमेटली आई हैव टू सिलेक्ट 10। तो इसमें क्या होगा, मतलब मेरा क्या आया कि 10। तो आपने पहला स्टूडेंट पहले सिलेक्ट करना है, रोल नंबर फर्स्ट से आपने सिलेक्शन करनी है। उसके बाद आप जाओगे 10th स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे, फिर 10th को करने के बाद फिर आप फिर से मूव कर जाओगे तो फिर आप 20 नंबर के स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे, फिर आप जाओगे फिर आप 30 नंबर के, क्योंकि आपको कितने इंटरवल की रेशो लेनी है, 10 नंबर की रेशो लेनी है। तो इस तरीके से मैंने जो है सैम्पल सिलेक्शन कर लेनी है। तो सिस्टमेटिक में क्या होता है, सबसे पहले आप पहला यूनिवर्स सिलेक्ट करोगे, फिर इक्वल इंटरवल पे आप दूसरे यूनिवर्स को सिलेक्ट, आप दूसरे इंटरवल को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इसके भी कुछ मेरिट्स होते हैं और इसके भी कुछ डीमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स क्या होते हैं, सिंपल होता है, कन्वीनियंट होता है, जो भी सैम्पल होता है वो सिंपल होगा और बहुत ही कन्वीनियंट सैम्पल होगा आपको, और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। और डीमेरिट्स इसके भी होते हैं, लाइक पॉपुलेशन विद हिडन पीरियोडिसिटीज़। तो जो पॉपुलेशन होती है उसमें कुछ हिडन पीरियोडिसिटीज़ होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडे टॉपिक, in which I have discussed about the simple random sampling, and in which we have discussed the two types of method, table random sampling and lottery methods. And after that we have discussed the systematic sampling, and also we have discussed the stratified sampling, in which we will create the starters. So this is all about my today topic, and I hope you will all understand. In my next video we are going to discuss the next part of the sampling methods. Thank you so much. So in my previous video I have discussed the various sampling methods, like non-probability methods are there, probability methods are there, and mixed methods. I have also discussed the probability non-probability methods, and in probability methods
we have discussed the sample random sampling, stratified sampling and systematic sampling. In my today video I am going to discuss the cluster sampling and the mixed sampling methods. So let's start our video. So what is the cluster sampling? Firstly we are going to discuss the cluster sampling. So what is it? Cluster sampling, a sampling technique in which the entire population of the interest is divided into groups or clusters and a random sample of this cluster is selected. ये एक तरीके की सैम्पलिंग टेक्निक होती हैं जहाँ पे हम पूरी अपनी एंटायर पॉपुलेशन को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम उनको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, या फिर एक डिफरेंट क्लस्टर्स क्रिएट कर देते हैं. So this is called cluster sampling. In each cluster must be mutually exclusive and together the cluster must include the entire population. तो जो भी हम क्लस्टर्स बना रहे हैं, जो भी एक क्लस्टर अगर बनेगा तो वो दूसरे उसके अंदर जितने भी और रिस्पोंडेंट होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो सारी की सारी एंटायर पॉपुलेशन को कवर कर सके. After the clusters are selected, then all the units within the clusters are selected. No units from non-cluster selectors are included in the samples. जब हम एक क्लस्टर बना लेते हैं तो अब हम जो हमारे बाकी क्लस्टर्स होते हैं हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं. जैसे कि मान के चलो अगर हमने क्लस्टर्स बनाया है, ठीक है, तो उस क्लस्टर में जितने भी हमारे वेरिएबल्स इंक्लूड्स हो जाते हैं तो जितने वेरिएबल्स रिमेनिंग क्लस्टर के बाहर रह जाते हैं तो उनको हम अपनी स्टडी का पार्ट नहीं बनाएंगे. हम उन्हीं रिस्पोंडेंट को हम अपनी स्टडी का पार्ट बनाएंगे जो कि हमारे इस क्लस्टर के अंडर आ रहे हैं. So in cluster sampling, the clusters are the primary sampling units and the units within the cluster are secondary sampling units. तो जो भी क्लस्टर सैम्पलिंग्स होते हैं इसमें हम दो तरीके के यूनिट्स बनाते हैं, प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट्स भी बनाते हैं और हम सेकेंडरी सैम्पलिंग यूनिट्स भी क्रिएट करते हैं. जो भी हमारे प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं उनमें हम अदर क्लस्टर्स जो भी सेकेंडरी सैम्पलिंग यूनिट्स के क्लस्टर होते हैं उनको हम इंक्लूड करके चलते हैं. स्ट्रैटिफिकेशन वर्सेस, अब देखो अभी हमारे दिमाग में ये बात तो आएगी, ठीक है, कि देखो जो हम स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें भी हम यही काम करते हैं, उसमें हम डिफरेंट स्टार्टर्स बनाते हैं. अब क्लस्टर सैम्पलिंग में भी ये होता है कि हम अलग नाम से हम क्लस्टर बना देते हैं, बट इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है उनको हम देखेंगे. इन स्ट्रैटिफिकेशन ऑल द स्टार्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सैम्पल. जो स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी हम स्टार्टर्स लेते हैं वो हमारे सैंपल को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लस्टर में क्या होता है, ओनली ए सबसेट ऑफ द क्लस्टर्स आर इन द सैंपल्स. क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, जब हम एक प्राइमरी क्लस्टर यूनिट बना लेते हैं तो उसमें हम सेकेंडरी जो यूनिट्स हमारा सैम्पलिंग यूनिट बनता है तो वो सबसेट्स हम क्रिएट करते हैं, वो सबसेट्स हमारे सैंपल को रिप्रेजेंट करते हैं. स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है, लेस एरर कंपेयर टू द सिंपल रैंडम. आपको कम एरर देखने को मिलता है जितना कि हमें सिंपल रैंडम प्रोसेस में मिलता है. देखो हम स्टार्टर्स बना लेते उसके बाद हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को हम यूज़ करते हैं, ठीक है. तो जब हम बना लेते हैं तब हम सिंपल रैंडम टेक्निक को हम यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हमारे एरर आने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. बट क्लस्टर में क्या होता है, और भी एरर आने के चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल रैंडम में. स्ट्रैटिफिकेशंस में क्या होता है, इट इज़ वेरी मोर एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन स्ट्रैटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन बिफोर सैम्पलिंग. जो स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, हमें पैसा जितना भी ज़्यादा लगता है ताकि हमारी जो स्ट्रैटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन होती है वो सैम्पलिंग में यूज़ की जाए. देन रिड्यूस कॉस्ट टू सैम्पल ओनली सम एरियाज और ऑर्गेनाइजेशंस. तो जो हमारे क्लस्टर में क्या होता है कि हम अपने कॉस्ट्स को कम कर देते हैं, ठीक है, ताकि एरियाज ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज में उसको कवर किया जा सके. सो क्लस्टर सैम्पलिंग के स्टेप्स क्या होते हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लस्टर. पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको एक क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं,
list of all the cities, towns, villages, wards of cities with their population falling in targeted area under study. तो हमें सारी चीज़ें की लिस्ट बनानी है कि कौन सी सिटीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, कौन से उनमें टाउन्स को हम कंसीडर करके चल रहे हैं, कौन से उसके विलेजेस को हम कंसीडर करेंगे, वार्ड्स कौन से होंगे सिटीज़ के, जितने भी हमारे टारगेटेड एरिया होते हैं हमारी स्टडी के, उनको हम लिस्ट डाउन करेंगे. देन कैलकुलेट कम्यूटेटिव पॉपुलेशन एंड डिवाइड बाय 30. अब हम क्या करेंगे, सभी जितने भी हमने चीज़ें, हम एरियाज जितना भी हम लेके चल रहे हैं, उनकी सवारी की सारी पॉपुलेशन को हम काउंट करेंगे और उनको डिवाइड करेंगे 30 के साथ. दिस गिव्स सैम्पलिंग इंटरवल. जो हमारा क्या है, एक सैम्पलिंग इंटरवल हमें प्रोवाइड करता है. देन सिलेक्ट ए रैंडम नंबर लेस देन और इक्वल टू सैम्पलिंग इंटरवल हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट. दिस फॉर्म फर्स्ट क्लस्टर. अब हमने क्या करना है, जो भी रैंडम नंबर ऑफ, हमने क्या करना है, अब सैम्पलिंग इंटरवल सिलेक्ट ए रैंडम नंबर. अब हमने रैंडम से नंबर सिलेक्ट करने हैं जो किसके लेस देन होंगे, या वो हमारे सैम्पलिंग इंटरवल के से कम होंगे, लेस होंगे, या फिर उसके इक्वल होने के चांसेस होते हैं उसके. ठीक है, जो इसको हम क्लस्टर कहते हैं. सो रैंडम नंबर प्लस सैम्पलिंग इंटरवल इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ सेकेंड क्लस्टर. अब जितने भी हमारे रैंडम नंबर्स हैं प्लस हमारे जो भी सैम्पलिंग इंटरवल होगा, वो हमारा अब सेकेंड क्लस्टर क्रिएट करेगा. अब थर्ड क्लस्टर कैसे क्रिएट करना है, सेकेंड क्लस्टर प्लस सैम्पलिंग इंटरवल इज इक्वल टू हमारा थर्ड क्लस्टर हो जाएगा. तो ऐसे अगर हमने 30th क्लस्टर क्रिएट करना है तो 29th उससे पहले वाला क्लस्टर प्लस सैम्पलिंग इंटरवल. तो ऐसे ऐसे हमारे क्लस्टर्स क्रिएट होते रहेंगे. तो इसमें सबसे बड़ा बेसिक काम क्या होता है, सबसे पहले आपको क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारे स्टडी के क्लस्टर्स कौन कौन से हैं. फिर जितनी भी हम सिटीज़ को लेके चल रहे हैं, जितने भी विलेजेस, टाउन्स, वार्ड्स, सभी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो वहाँ की सारी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन स्टडी में इन्वॉल्व होती है, उन सभी को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे हमारी कितना पॉपुलेशन होगा. अब जितनी भी हमारी पॉपुलेशन होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 30 के साथ, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, सैम्पलिंग इंटरवल. अब हमने क्या करना है, रैंडम नंबर हमने लेना है, कोई भी नंबर चूज़ कर लेना है जो कि हमारे सैम्पलिंग इंटरवल से कम का नंबर होगा या फिर उसके सेम जितना होगा, वो हमारा फर्स्ट क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा. अब सेकंड में क्या करना है, जो भी हमारे हमने रैंडम नंबर सेकंड होगा प्लस सैम्पलिंग इंटरवल होगा, तो वो हमारा सेकंड क्लस्टर हो जाएगा. तो ऐसे थर्ड एंड फिर 30th और अप टू सो ऑन जितने मर्जी आप क्लस्टर क्रिएट कर सकते हो. अब ये मैंने एग्जाम्पल ली हुई है. ठीक है, फ्रिक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी ली है, फिर मैंने क्लस्टर क्रिएट किया है. ठीक है, तो क्लस्टर मेरा 1 1 है, 3 है, ये 4th 5th है, 6th है, तो अप टू 30 तक मैंने क्लस्टर क्रिएट कर लिया है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में मेरा जो है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मेरा, इसमें जो है सैम्पलिंग इंटरवल सबसे पहले हम निकालेंगे. सैम्पलिंग इंटरवल निकालने के लिए हमारे पहले हम देखेंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ रही है. कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में हमारी 90,000 आ रही है. अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करो, जैसे लास्ट में मेरी देखो मैंने 90,000 मेरी आ रही है, तो मतलब वो टोटल पॉपुलेशन साइज मेरा कितना है, 90,000. अब उसको मैं कर दूंगी डिवाइड बाय 30, तो विच इज़ इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 30,000 सैम्पलिंग इंटरवल्स आ जाएंगे ये. तो हमारा सैम्पलिंग इंटरवल कितना है इसमें, 30,000. तो मैं पहला क्लस्टर क्रिएट करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी सेकेंड. रैंडम सैम्पल मेरा 2000 आया. ठीक है, 3000 आया, 3000. अब उसके बाद प्लस 2000 मैंने लिया, वो 2000. अब क्लस्टर सैम्पलिंग के क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डीमेरिट्स होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे. मेरिट्स क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग होती है. ये बहुत ही इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग होती है, इसमें एरर आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. नेक्स्ट क्या है इसमें, लार्जर सैम्पल फॉर स्मॉलर फिक्स्ड कॉस्ट. अगर आपका सैम्पल साइज़ लार्ज है, अगर आपकी जो है सैम्पल साइज़ लार्ज है और आपका जो है पॉपुलेशन साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तब आप क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक को ले सकते हो. उसके बाद आता है लेस टाइम, हमें लेस टाइम लगता है इसमें. ठीक है, रिड्यूस ट्रैवलिंग कॉस्ट्स हमें कम पड़ती है. अब डीमेरिट्स क्या हो जाता है, डीमेरिट्स इसके क्या होते हैं, मे नॉट रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी. ये हमारी डाइवर्सिटी, हमारी कम्युनिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं.
स्टैंडर्ड एरर आने के चांसेस जो होते हैं वो हाई होते हैं, और अदर सैम्पलिंग डिज़ाइन के साथ इसको हम सैम्पल साइज इसमें बड़ा मिल सकता है हमें। नाउ कम टू द मिक्स्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब मिक्स्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं उसको हम देखेंगे। मिक्स्ड सैम्पलिंग टेक्निक में सबसे पहली सैम्पलिंग टेक्निक हमारे पास आ जाती है, उसका नाम है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग प्रोसेस, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज दैट सैम्पलिंग टेक्निक विच कैरिड आउट इन वेरियस स्टेजेस। ये एक तरीके की ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है जिसको हम वेरियस स्टेजेस में कैरिड आउट करते हैं। एंड इफेक्टिवली स्ट्रैटेजी बिकॉज इट बैंक्स ऑन मल्टीपल रेंडमाइजेशन। एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के तौर पे ये निकल के आती है और हमें रेंडमाइजेशन प्रोसेस में ये अफेक्ट करती है। इसको यूज्ड फ्रीक्वेंटली व्हेन ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड इज इनएप्रोप्रिएट। अब इनको तब भी यूज़ किया जा सकता है जब आपके पास कंप्लीट पॉपुलेशन की लिस्ट ना हो, ठीक है, तो तब भी इनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, और हमारे पास इनएप्रोप्रिएट्स हो मटीरियल जो भी है। अब देखो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में सबसे पहले स्टेज 1 क्या है, हमारे पास कंट्रीज़ है। वहाँ से स्टेज 2 में मैंने सेगमेंट्स कंसीडर किए। सेगमेंट लेने के बाद मैंने हाउस होल्ड बना लिया और वहाँ से मैंने इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर लिया। तो दैट इज़ ए मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज कैसे हुआ? पहली स्टेज में मैंने कंट्री को एज ए सैम्पल के तौर पे लिया, फिर कंट्री से वहाँ से मैंने और सैम्पल निकाला सेगमेंट, फिर वहाँ से और सैम्पल निकाले हाउस होल्ड, और वहाँ से और सैम्पल निकाल के मैंने हाउस इंडिविजुअल्स को ले लिया। सो दैट इज़ अवर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो इसके भी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। इसके मेरिट्स क्या होंगे हमारे पास? इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन द सैम्पलिंग मेथड। हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलते हैं। एग्जिस्टिंग डिविजन्स एंड सब डिविजन्स ऑफ पॉपुलेशन टू बी यूज्ड एज यूनिट्स। ये और भी ज़्यादा, जैसे डिवीज़न एक बार डिवीज़न किया तो दूसरी बार डिवीज़न किया, तो सभी में ये हमें हेल्पफुल करता है, ठीक है, कि भाई किस तरीके से हम डिवीज़न क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आ जाता है लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड। हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को इसमें कवर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें वैल्यूएबल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये वैल्यूएबल होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें डीमेरिट्स इसके क्या है। लेस एक्यूरेट दैन ए सैम्पल चूजन बाय सिंगल स्टेज प्रोसेस। जितना ज़्यादा हम स्टेप्स लेके चलेंगे, जितनी ज़्यादा स्टेजेस लेके चलेंगे, तो उतनी ही इसकी एक्यूरेसी भी कम होनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ द डीमेरिट्स ऑफ दिस सैम्पलिंग टेक्निक। नाउ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है? ये कौन सी स्टेज स्टडी में कैरिड आउट किया जाता है? जब हमारी स्टडी जो होती है मल्टी फेसेस की हो। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल मैंने लिया है ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऑन न्यूट्रिशन मे बी कैरिड आउट इन दिस फेस। अगर हमने न्यूट्रिशन के ऊपर स्टडी करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे फेस 1 लिया मैंने, कैप स्टडी इन ऑल फैमिलीज। मैंने क्या किया? ऑल फैमिलीज़ की स्टडी लेना शुरू किया। फेस 2 डाइटरी असेसमेंट इन सब सैम्पल। अब जितनी फैमिलीज़ के मेंबर हैं वहाँ पे मैंने डाइटरी सप्लीमेंट ले लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट ही मैंने लिया एंथ्रोपोमेट्रिक एग्जामिनेशन इन सम सैम्पल ऑफ फैमिली मेम्बर्स कवर्ड इन सेकेंड फेज, ठीक है। अब सेकेंड फेज में इसको हम देखते हैं कि भाई कैसे कवर्ड किया जा सकता है। लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग। अब लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग में क्या होता है? लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग की कैसी मेथड होता है? विच इज़ ओरिजिनेटेड इन द मल्टी फैक्टरिंग इंडस्ट्री फॉर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस हम कंटिन्यू करके चलते हैं। मैन्युफैक्चरर्स वर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग वेदर ए बैच और ए लॉट ऑफ गुड्स मेट द डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशन। जब मैन्युफैक्चरर इंटरेस्टेड हों कि जो भी हम बैच प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। द ओनली आउटकम इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। और इस तरीके के सैम्पलिंग टेक्निक में हम या फिर एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं।
द सैम्पल साइज इज़ द नंबर ऑफ द यूनिट्स दैट आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच लॉट. द सैम्पल साइज जो भी हम लेके चल रहे हैं, दैट यूनिट विच इज़ सिलेक्टेड फॉर ईच लॉट. द डिसीजन वैल्यू इन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम दैट नीड ए फाउंड बिफोर इट इज़ डीम्ड अनएक्सेप्टेबल. ठीक है, तो इसको हम डिफेक्टिव में अनएक्सेप्टेबल लेके चलते हैं. सो इसमें दो तरीके के रिस्क हमें देखने को मिलते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. टाइप 1 एरर क्या होता है, जब हम बैड डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और टाइप 2 एरर क्या होता है जिसको हम गुड डिसीजन को रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो दो तरीके के एरर आने में चांसेस के होते हैं. नाउ लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग. इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉट्स कैन बी कम्बाइंड टू ऑब्टेन द ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट्स. ठीक है, इन्फॉर्मेशन हम जो भी ऑब्टेन करते हैं तो वो ओवरऑल पॉपुलेशन जो भी होता है उसके डिफेक्ट के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है. द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू द कंप्लीट सेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग लॉट्स. जो इसमें जो भी पॉपुलेशन हम डिस्क्राइब करके चलते हैं, पहले उनको डिवाइड किया जाता है नॉन ओवरलैपिंग लॉट्स में. देन सैम्पल्स आर दैन टेकन फ्रॉम एवरी लॉट. अब सैम्पल्स हम लेके चलते हैं हर एक लॉट से, एंड द प्रपोर्शन ऑफ द डिफेक्टिव आइटम्स इन ईच लॉट इज कैलकुलेटेड. अब जितने भी हम प्रपोर्शन हम सिलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है, ईच लॉट के उसके डिफेक्टिव आइटम्स का, तो उसको हम कैलकुलेट करके चलते हैं. तो अब लार्ज क्वालिटी एश्योरेंस जो सैम्पलिंग मेथड होता है वो सर्टिफाइड सैम्पलिंग मेथड की एक तरीका होता है. ठीक है, जिसमें हम लॉट्स के ऊपर रोल प्ले करके चलते हैं कि स्टाटा के टेक्निक को यूज़ करके चलते हैं. द एडवांटेज ऑफ लॉट क्वालिटी मेथड ओवर ए ट्रेडिशनल सर्टिफाइड सैम्पलिंग डिज़ाइन इज़ दैट द रिस्पॉन्स फॉर ईच लॉट इज़ बाइनरी एक्सेप्टेबल और नॉट. इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, हम बीच का डिसीजन नहीं लेके चलते हैं, हम पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं कि जब लॉट को एक्सेप्ट किया जाएगा, जब आपका लॉट रिजेक्ट हो जाएगा. अब लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग में क्या होता है, विच इज़ एवेल्युएटिंग ए नंबर ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, एग्जाम्पल इम्यूनेशन कवरेज, नॉलेज ऑफ ORS एट्सेट्रा. अब इसमें हम इम्यूनिटी कवरेज या फिर ORS टेक्निक्स को अगर हमने लेना है तो तब हम लॉट क्वालिटी एश्योरेंस मेथड को लेके चलते हैं. तो ये ज़्यादातर मेथड तब सक्सेसफुल होता है जहाँ पे हम हेल्थ सर्वे लेके चलते हैं. नाउ अब सैम्पलिंग के एरर कौन कौन से होते हैं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जब हम सैम्पल में सिलेक्ट करने के टाइम पे एरर लेते हैं. नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या होता है, सैम्पल लेना है कि सेंसर लेना है, हमें यही नहीं पता है कि अगर हमने सैम्पल लेना है कि नहीं लेना चाहिए, या फिर हम पूरा सेंसर से लेके चलते हैं, तो उस टाइप के एरर को हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं. और सैम्पलिंग एरर किस तरीके का एरर होता है, जब हम ये सिलेक्ट करके चलते हैं कि हमने सैम्पल लेना है, सैम्पल सिलेक्ट करने के टाइम पे जो हम एरर लेते हैं. सो सैम्पलिंग एरर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, बायस्ड और अनबायस्ड एरर्स होते हैं. बायस्ड एरर्स कौन से होते हैं, एलिमिनेशन ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ बायस. ठीक है, जब हमारे एलिमिनेट होते हैं सारे के सारे सोर्सेज बायस के. और अनबायस्ड में क्या होता है, इंक्रीज्ड सैम्पल साइज. अनबायस्ड एरर में जब हम अपना सैम्पल साइज बड़े ही ज़्यादा तरीके से इंक्रीज कर देते हैं. तो इनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, नॉन सैम्पलिंग एरर कौन से होते हैं, डाटा स्पेसिफिकेशन इनएडिक्वेट एंड इनकंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंसस. आपका जो भी डाटा स्पेसिफिकेशन होता है वो इनएडिक्वेट हो या इनकंसिस्टेंट हो, जहाँ आपके ऑब्जेक्टिव सेंसस के हों वो इनअप्रोप्रिएट हो. सो व्हेन इट इज़ इनएक्यूरेट, इनअप्रोप्रिएट मेथड्स होते हैं जब इंटरव्यू हो, ऑब्जर्वेशन हो या डेफिनेशन हो. लैक ऑफ ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स, ट्रेनिंग प्रॉपरली ना मिली हो, इन्वेस्टिगेटर को प्रॉपरली नॉलेज ना हो, तब हमें इस एरर के आने के चांसेस बहुत होते हैं. एरर ड्यू टू नॉन रिस्पॉन्स, एरर तब भी आता है जब हमें नॉन रिस्पॉन्स मिल रहा है. एरर इन डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन एंड एरर कमिटेड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो इन तरीके के एरर में हम लेते हैं. सो ये कब एरर मिलते हैं, जब हम कंप्लीट एनमरेशन सर्वे को लेके चलते हैं. So thank you so much. This is all about my today topic, and if there is any doubt left, then please let me know. By this my sampling technique topic is completed now, and after that I am going to cover the two types of error in hypothesis. Thank you.